Mahadev everyone, welcome to my first ever video on my first ever YouTube channel. So I am Saumya and I am currently pursuing MSc Applied Microbiology from Banaras Hindu University, Varanasi. Came up with the idea of having this channel because lately बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे questions पूछे हैं about this field. I'm getting a lot of texts from my juniors about this course, particularly here, and the scope of doing research and pursuing microbiology as a career option. तो मुझे लगा कि if there are some people who have these many questions, there would definitely be a lot of them who would have the same questions, and definitely this channel would also give you a peek into my life at BHU. As you can see, I'm currently recording this from my hostel and मेरे पीछे बहुत सारे प्यारे प्यारे कपास के फूल गिरे हुए हैं. So it's really pretty right here during this time of the year, and the entire campus in itself is a beauty. So I would definitely try to give you a glimpse whenever and however I could around the campus. इसके अलावा there has also been an intention of promoting science as a career, pursuing research and making sure that there are more women in science. क्योंकि अभी recently I came across this newspaper article. मेरे एक senior हैं, उन्होंने अपने WhatsApp status पे वो clip लगाई थी और उसमें it was mentioned that there is this very esteemed prize called Shanti Swarup Bhatnagar prize, and in the scientific community it is very renowned. If someone gets that prize, it's actually a pretty big deal. और वो approximately 591 scientists को मिल चुका है, and sadly उसमें से सिर्फ 20 are women. So this is not just shocking, it's actually very scary. So my aim with this YouTube particularly would also be to promote women in science. Okay, there's someone who took out her scooty. That's the sounds you would definitely hear in my videos, because I would prefer to come out in the air and show you a little bit of the campus, and पीछे से background noises आएंगी. But I'll assure you that it does not hamper the content of the video or the quality, definitely. So as I was saying, women in science, pursuing research as a career, and then of course this life at BHU and your doubts for entrances, competitive exams, whether to take coaching or not. Those questions definitely need to be answered, and someone has to do it. So I would take the initiative and try to come up with something good. I would also like to tell you a little bit about myself. I have completed my graduation BSc Honours Microbiology from University of Delhi, and then I cleared CUET PG and got a seat here in BHU for, of course, Applied Microbiology, my Masters. And apart from that, I have done internships at NIMHANS Bangalore and ACBR, which is in University of Delhi. I have also done workshops at IIT Delhi and AIIMS Delhi. So I have a little bit of experience and knowledge about these institutes, and of course I have given a lot of entrances to come up. इसके अलावा I have also given a lot of entrances जिससे related सबसे ज़्यादा questions होते हैं लोगों के, because entrance exams are the ways to get a seat anywhere in this country. So definitely going to tap into that section where we discuss कि कितने एंट्रेंसेस हैं, क्या क्या करना चाहिए, कितने के फॉर्म्स भरे. CUET PG में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके फॉर्म्स लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि हम दीदी ये वाला फॉर्म भरें कि नहीं भरें. तो मेरा उन सब एरियाज़ को कवर करने का आइडिया रहेगा, and whether it's a good idea to take a drop, and whether you should actually think of doing a PhD. So if I ask the target audience, तो target audience as per particularly ऐसा नहीं है कि मैं एक certain. So the target audience for this channel would definitely be the people who have completed their bachelor's or are pursuing it,
and also the people who are doing masters right now, because I have a lot of friends who come from a background where they could not get that much exposure, and उनके भी questions होते हैं about internships and what to do in research and where to go. So I would love to cover up whatever I know, and since I'm still learning, I would try my best to answer and help according to my knowledge. And इसके अलावा people who have just completed their 12th standard or people who are in school right now, उनके लिए भी ये channel helpful होगा, क्योंकि it would help them realize कि apart from medicine and engineering there are other branches of science where you can go in case you're feeling a little stuck and caught and you don't really want to go into the conventional things that people do. एक प्रॉब्लम जो मैंने बहुत फेस किया पर्टिकुलरली वो ये है कि लोगों को समझाना कि इफ़ आई एम डूइंग एन MSc इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इट्स नॉट द सेम एज़ डूइंग कुछ मेडिसिन में, कुछ भी डॉक्टरी का. और जब मैंने अपने फ्रेंड से ये चीज़ डिस्कस की तो उन्होंने कहा सही में यार किसी को समझ ही नहीं आता कि प्योर साइंसेस जैसी भी कोई चीज़ है. उनको बोलो कि रिसर्च करनी है तो इट टेक्स देम अ लिटिल वाइल टू अंडरस्टैंड. तो ये चीज़ थोड़ी सी सैड है, क्योंकि ये फिर हम लोगों को काइंड ऑफ ऐसे क्लोज डोर्स दे देती है कि यार इसके आगे तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं. तो वो एक मिथ है, उसको डीबस्ट करना है, और डीबंक होता है ना शायद, आई डोंट नो. तो उस मिथ को डीबंक करना है. एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हमें खुद ये समझना है कि this is a field which is actually very great. Having a love for biology can lead you to a research lab where you can actually find a cure for something and come up with something which is actually very great for the world. And of course हर फील्ड उतनी ही डिफ़िकल्ट और रिवॉर्डिंग होती है डिपेंडिंग ऑन कि आप उसमें कितना प्यार और कितना इंटरेस्ट दे पा रहे हैं. इफ़ यू डू समथिंग आउट ऑफ लव and you are actually good at it, which gets better because everyone has to learn the process. तो जितना अच्छा आपका प्यार होगा towards that subject, आपका interest होगा, उतने ही अच्छा आपके skills develop हो पाएंगे, because आप उस subject को automatically ज़्यादा time दोगे और ज़्यादा प्यार दोगे. तो ऐसा नहीं है कि सिंपल BSc कर ली, जो कि बहुत ही कॉमन फ्रेज है, सुनने में आता है, इट्स अ बैड आइडिया. नो, इट्स नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरा खुद का कोई प्लान नहीं था टू परस्यू BSc, बट when once I came here and once I started studying, I realized that it's actually a subject I would love to pursue for the rest of my life. स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैंने भी नीट की कोचिंग ली थी, और 11th-12th में आई यूज़ टू रन फ्रॉम स्कूल टू गो टू क्लासेस, और घर में भी बहुत ऐसे चीज़ें हुई जिससे कि समय नहीं मिल पाया, या फिर कुछ परफेक्टली नहीं हो पाई चीज़ें एग्जीक्यूट, और आई कुड नॉट क्लियर नीट. और इवेंचुअली मैंने बैकअप में सोचा था कि आई वुड जस्ट परस्यू एटलीस्ट सम कोर्स. तो उस हिसाब से मैंने कहा कि चलो यार एक बार DU का पोर्टल खुला हुआ है, लेट्स जस्ट फिल द फॉर्म. एंड ज़ूलॉजी बॉटनी नहीं करनी थी बिकॉज आई डोंट नो, आउट ऑफ नॉट लैक ऑफ इंटरेस्ट. और बचा था उसके बाद बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी. तो मैंने सोचा कि बायोकेमिस्ट्री इज़ प्रॉबली साउंडिंग अ लिटिल डिफ़िकल्ट, तो माइक्रोबायोलॉजी एंड इट साउंड्स क्यूट, ओके. तो या दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट सिलेक्टेड माइक्रोबायोलॉजी इन दैट लिस्ट. और सरप्राइजिंगली इट वर्कड प्रिटी वेल. और फ्यू डेज़ डाउन द लाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन था सब कुछ, कोविड चल रहा था. तो एक दिन ऐसी क्लास थी बैक्टीरियोलॉजी की, एंड वन ऑफ माई प्रोफेसर शी शोड अस अगार आर्ट. ओके, आई विल ट्राई टू इंसर्ट अ पिक्चर हियर. एंड अगार आर्ट में इट वॉज़ ब्यूटिफुल. ओके, मुझे प्यार हो गया, जेन्युइनली लेजिट प्यार हो गया मुझे उस छोटी सी पेट्री डिश से. एंड दैट डे सडनली आउट ऑफ नोवेयर आई थॉट कि यार ये इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, हाउ अबाउट आई समडे एक्चुअली डू अगार आर्ट.
और मैं भी एक कंपटीशन जीतूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत हाई लेवल पे एक चीज़ है। अगार आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आप बैक्टीरिया को ग्रो करते हो एंड यू यूज़ डिफरेंट कलर्स, फ्लोरेसेंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लेट इट ऑन डिफरेंट मीडिया एंड यू कम अप विद डिफरेंट डिज़ाइंस. So it's extremely pretty to watch, and it also shows how good at you are at in your field, क्योंकि you will have to have a very good idea about the microbes to actually come up with something like that. तो दैट डे आई थॉट कि यार चलो माइक्रोबायोलॉजी करते हैं. उससे पहले मैं यही सोच रही थी कि बीएससी तो कर रही हूँ, साथ में नीट के लिए भी प्रिपेयर करूँगी 1 साल और. पर उस दिन मैंने ऐसे ही मम्मा डैडी से बात की और मैंने कहा कि देखिए मैं नहीं कर सकती, मुझे नीट के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना. आई रियली वांट टू डू माइक्रोबायोलॉजी इटसेल्फ. एंड सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथली ट्रांजिशन हो गया मेरा. मैंने छोड़ दिया नीट के लिए प्रिपेयर करना एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माइक्रोबायोलॉजी इटसेल्फ वेरी आर्डेंटली. और फिर कोविड के बाद कॉलेजेस खुले और मैंने 2 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया एंड मुझे एक ऑन्कोलॉजी लैब में DU में और दूसरी निम्हांस बैंगलोर में इंटर्नशिप मिली. एंड इसकी स्टोरी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि दीज टू हैव बीन वेरी गुड एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. इमेजिन अ 19-year-old who has never been outside her home because I am from Delhi and मुझे सडनली ऐसे बाहर जाना है एक अलग सिटी में जहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और बाहर रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई स्टिल टुक द चांस, क्योंकि आई रेड समवेयर दैट अ शिप इज़ सेफेस्ट एट द शोर बट दैट्स नॉट वेयर इट्स मेंट टू बी. तो बस इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर एंड आई took the chance. I thank my parents कि उन्होंने मुझे पुश किया ये करने के लिए. My professors who helped me a lot, Prerna ma'am especially, she helped me a lot through this transition of going there. And I went there and completely new city. I had to stay in IISc Bangalore. You must have heard the name because it's the premier institute in research in our country. और वहाँ से आई यूज टू डू अप एंड डाउन डेली टू निम्हांस. एंड सिंस आई वॉज अ लिटिल किड एट दैट टाइम, आई वुड से आई हैड लिटिल टू नो एक्सपीरियंस इन द फील्ड. तो लैब में एटिकेट्स, बिहेवियर, कंडक्ट, ये सब चीज़ें सीखना बहुत ही धीरे धीरे सीखा. बट जो भी वहाँ से लर्न किया, जो भी वहाँ पे लोगों से मिली, IISc में जब मैं मेस में जाती थी, खाना खाती थी और वहाँ के PhD स्कॉलर्स के साथ बैठ के बात करती थी, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो एक छोटू से मेंढक की तरह थी जो कि अपने कुएं में था. एंड सडनली मुझे एक पूरा वर्ल्ड दिखा जहाँ पर लोग पैशनेट हैं रिसर्च को लेके, साइंस को लेके, और बहुत brilliant लोग. Okay, you sit with them and they would just open a realm for you. Where they'll tell you everything you have never even tapped into. So definitely another video completely on these internships. And workshops के बारे में बोलें तो IIT दिल्ली में और AIIMS दिल्ली में दोनों में ही AI पे वर्कशॉप्स थी. एंड हाउ वी कैन लिंक AI इनटू बायोलॉजी, समथिंग दैट्स रियली कमिंग अप. आजकल सब चीज़ें AI से एंड एक टेक्निकल एस्पेक्ट से लिंक कर रहे हैं हम. तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एक ऑन्कोलॉजी में, एक ब्रेन पे कुछ चीज़ें AI पे, व्हाट आई wanted to do through this is कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मिले एक, और हर चीज़ के बारे में जानने को मिले. और इस चीज़ से बहुत हेल्प हुई, बहुत कॉन्टैक्ट्स मिले, बहुत ऐसे लोग मिले जिनसे इतना कुछ सीखने को मिला कि आज आई एम केपेबल इनफ कि थोड़ा सा वीडियो में बोल सकूं. नहीं तो आई वॉज डेफिनेटली नर्वस बिफोर कमिंग अप विद दिस चैनल, क्योंकि कौन सुनेगा, कौन देखेगा, एंड अभी भी हूँ थोड़ी सी. बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जितना मुझे पता है और जितना मैंने सीखा है, आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू ट्रांसलेट इट
टू दीज वीडियोज़, एंड ताकि आप लोग देख सकें, सीख सकें, समझ सकें और जान सकें जो कि मैंने देखा है, और आपको एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप प्योर साइंसेस कर रहे हैं तो, या फिर अगर आपको करना है तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड आइडिया। एंड बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत ड्रीम्स हैं कि इंडिया साइंस में, स्पेशली प्योर साइंसेस में एंड डेफिनेटली बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत अच्छा करें। एंड मेरे आइडल हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, एंड उनकी हमारी जनरेशन से बहुत एक्सपेक्टेशंस रह चुकी हैं। तो इट वुड बी अमेजिंग टू सी ऑल ऑफ अस फुलफिलिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज हम नहीं तो और कौन करेगा। और I would love if you share my content with the people who would actually need to see it, और आप भी देखें and you can definitely drop a comment कि you want to see something specific, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि उस चीज़ पे पर्टिकुलरली वीडियो बना सकूँ, उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ जिसकी ज़रूरत है। एंड I would try to come up with the next video which is titled or aim to tell कि what to do after doing a BSc in a life sciences course, especially for these batches जो कि अभी entrances दिए हैं and they are waiting for the results, या फिर अभी भी अगर कोई entrance बचा हुआ है तो, और क्या कर सकते हैं if they are afraid कि they won't be able to get a college through the entrances because उतने अच्छे नहीं हुए। So please stay tuned and please subscribe, like and share and comment. मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी मैटर करती हैं, पर once you make content which you want people to see, which you want people to know कि ये चीज़ें दुनिया ऐसी भी है। BHU के हॉस्टल्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता ही देती हूँ, सिंस गर्ल्स वुड डेफिनेटली बी क्यूरियस कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या है, कैसे है। सो वी हैव डबल शेयरिंग रूम्स, वी हैव 2 people staying in 1 room, and the hostel that I am in, New PG girls hostel, यहाँ पर you get a lot of services like there is a lift, lol, but apart from that there is a washing machine where you can wash your clothes, and there's mess service. There are 2 messes in our hostel. The food is really good. उसके अलावा there is a common room, there is a reading area. Common room में TV लगा हुआ है where you can watch movies with your friends, and there is reading room जहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। गीज़र, बेसिक सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके अलावा भी there are certain restrictions also, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, टाइमिंग्स का, like you have to be back in the hostel by 10 PM, which is fine because our classes end up in the evening around 5 itself, और लैब के बाद भी। और कभी अगर संडे वगैरह को जाना हो तो you can go outside for dinner because yeah, mess is off on Sundays, so you definitely go outside and have lunch at Lanka. Lanka is the main gate का area, and there is so much about BHU that you will love to see, love to know, and there's this compound area where I'm walking right now. यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ और फ्लावर्स लगे हुए हैं, एंड मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे रात को वॉक करते हैं। हम बाहर भी जाते हैं ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे भी करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं यहाँ पे, और बैठ के बातें करते हैं। सो इट विल नेवर फील लाइक कि आप घर से दूर हो। दिस हॉस्टल एक्चुअली बिकम्स अ होम अवे फ्रॉम होम, एंड योर फ्रेंड्स दे जस्ट बिकम फैमिली। तो डेफिनेटली ट्राई टू सिक्योर अ सीट गाइज, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। यहाँ तक के लिए पढ़ना, मेहनत करना, एवरीथिंग इज़ डेफिनेटली वर्थ द मेहनत। सो बेसिकली मेरी भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि मैं पहली बार एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, अकेले हैंडल और मैनेज करूंगी, तो समय लगेगा सीखने में, पर आई वुड डेफिनेटली लव टू इम्प्रूव। और आप जो भी बोलोगे कि यू पर्टिकुलरली नीड डाउट, यू हैव डाउट्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर चीज़ें सॉल्व करने की हेल्प कर सकूँ। तो और इट्स, यू नो हाउ इट वर्क्स राइट, यूट्यूब वीडियोज़ और ये सब चीज़ें बनाने में मेहनत भी जाती है, टाइम भी जाता है और एनर्जी भी जाती है।
So if it actually leads to good results, if someone is actually getting good knowledge from it, they're learning from it. So this is definitely worth it. Or please just share it with the people you think who would need to watch this, who would love to watch this. Or this channel is not my responsibility anymore, it's of course yours. क्योंकि आप लोग ही हेल्प कर सकते हो मुझे ग्रो करने में और इस चैनल को भी. तो प्लीज़ जस्ट drop all the things that are click all the necessary buttons, not the dislike one of course. So see you soon, take care of yourselves, stay hydrated, keep reading something new, keep yourselves well informed, and take care of yourselves. Har Har Mahadev.